ये हैं तो सब्जी वाले, लेकिन ये इंतहाई पुरकशिश जिंदगी गुजार रहे हैं। शानदार घर, लग्जरी गाड़ियां और पुरताइश जिंदगी। बीगो नामी ऑनलाइन ऐप पर सब्जी वाला ग्रुप के नाम से कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं, जिन्हें लाखों की तादाद में देखा जाता है। क्या कोई सब्जी वाला इतना भी अमीर हो सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद है टीम सब्जी वाला। जोशी भाई, बिलाल गफ़ारा, मलिक आमिर और हाजी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इन्होंने अपने कस्बे से कैसे मेहनत शुरू की और उसके अलावा बाद में ये लाहौर में आके एक कैसे बंगले में रह रहे हैं, उसके बाद इतने पैसे, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, ये सब कुछ कैसे बन गया, आज इन्हीं से जानते हैं। जोशी भाई, आपने भी अच्छे कपड़े पहने हैं, मलिक साहब आपने भी, हाजी साहब आपने भी। इनको क्या बाबा जी? अब भाई ये कौमी यतीम च जाना है। कौमी टीम च जाना, यतीम च नहीं जाना भाजी। टीम कहना सी सेंटर पंजाब च मेरी स्पेंटली आई एम क्रिकेटर। की है और पर्सनैलिटी कह रहा है। ये बल्दिया च लगा होया है, मुंह ना डके खोलदा है। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੰਜਾਂ ਲੁੱਟਦਾ ਇਹਨੇ ਬੂਟ ਤਾਂ ਪਾਏ ਨੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਭਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਜੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਫੜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਹੈ ਗਰੀਸ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਰਿੰਗ ਬਣੇ ਹੋਏ बाबा जी होश करो। उन्होंने कोई पूछ रहा तो मेरे को जरूरी पूछना। उन्होंने को पूछ लो तो मेरे को जरूरी पूछना यार। शुगल मेला, यू नो, हैप्पी वैलेंटाइन डे एंड पटाटे से ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੇਂਦ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬੋਡੀ ਪੂਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਛਾਤੀ ਬਾਹਰ ਲੱਤ ਡਿੰਗੀ ਆ ਕੋਣੀ ਤੇ ਇਧਰ ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਨੱਕ ਤੇ ਐ ਆ ਦੰਦ ਵੀ ਭੁਰ ਗਏ ਨੇ जापान वालों ने मना कर दिया सब मिस्र से मम्मी मंगवाई हमने और सच्ची मुझे ला आज को कोट पवाया ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ, ਕੱਚੀ ਕੋਠੀ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਬੀਗੋ ਲਾਈਵ, ਟਿਕਟੋਕ, ਮੁxtਲਿਫ ਐਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਈਏ। ਦਿਹਾਤ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਵੈਤ ਹੋਵੇ, ਇਰਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਰਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਫਰਾਂਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸਲ ਸਕੂਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਪਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ, ਟਿਕਟੋਕ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੈਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ? ਬਿਗੋ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, 70-80 ਲੱਖ ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਵੇ ਅੱਧੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਣੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜੋਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਰਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਬਿਗੋ ਤੋਂ ਕੀਤਾ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰੀਏ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਏ, ਫੇਮਸ ਹੋਈਏ। ਐ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਚੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੋਸ਼ੀ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਦੋਸਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ,
छः दोस्त हो पहले 506ਵਾਂ ਹੋਣ ਆ ਕੇ ਰਲਿਆ ਮੈਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਫੀ ਸੈਫੀ 6 ਦੋਸਤ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ ਇੰਨਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਲੇਕਿਨ 10-20 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ और मैं तो हमेशा उर्दू ही बोलता हूँ अपने पूरे ग्रुप में और मेरी शक्ल भी आपको ग्रेजुएट वाली लग हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी किस किस्म की मेरे साथ बेहूदगी और अब इसकी शक्ल यार वो जोशी भी उर्दू बोल इसकी शक्ल ग्रेजुएट है और इसकी ग्रेजुएट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तेरा जुबलेट अच्छा जी अलहमदुलिल्लाह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਾਡਾ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਜੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਹੈ अगर लीडर ही कमज़ोर हो तो कभी भी टीम एक जगह नहीं रह सकती जोशी भाई मुझे ये बताएं कि सब्ज़ी वाला ये आपका नाम कैसे यानी कि वजूद में आया क्या आप सब्ज़ी का काम करते थे या कोई सब्ज़ी वगैरह बेचा करते थे क्या सीन क्या है ये ज़ाहिर सी बात है अगर सब्ज़ी वाला नाम है तो कोई ना कोई लिंक तो हमारा सब्ज़ी के साथ है हाँ। तो ज़हन में यही चीज़ रखी थी कि यार मतलब पूरे पाकिस्तान में हर घर की ज़रूरत है सब्ज़ी तो सब्ज़ी का हमारा काम भी था सब्ज़ी में आड़त हमारी आड़त थी जैसा कि आपको हमने दिखाया भी सारा कुछ तो ये हम सब बचपन के दोस्त थे एक साथ ही खेलते थे एक ही गली के हैं तकरीबन साथ एक दो दूसरी गली के हैं और हमें बहुत शौक़ होता था इस तरह फ़न करना रात को एक दूसरे के साथ बैठना शुगर लगाना तो वहाँ से जब ये फेसबुक लाइव स्टार्ट आई ना वहाँ से एक हमारा ना एक सिस्टम बना हमने लाइव आना शुरू किया और हमें व्यूज़ अच्छे आने शुरू हुए लोग हमें पसंद करने लगे तो फिर हम वहाँ पे ना थोड़ा सा शुगल मुगल लगाते थे हाजी लड़कियों वाले कपड़े पहन लिए अच्छा वो लड़कियों वाले कपड़े पा के फ़न करना डांस करना मतलब जुगता करना इस तरह करके ना लेकिन मैं काम करदा सी घर वाले ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਇਹ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਹ ਅੱਬੇ ਕੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਟਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ जोशी भाई अचानक फेसबुक से बीगो लाइव का ਅਚਾਨਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਪੁੱਫਾ ਤਾਇਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਐ ਲਾਈਵ ਲੂਈ ਕਰੀਏ ਇਹ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਿਗੋ ਲਾਈਵ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਆਓ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਗੂਰੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਨ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਮਲਕ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾਲੇ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ WhatsApp ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ टिकटॉक ਤੇ ਹੋਣਾ ਆ ਰਹੀ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ 6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ हेलो ए कौन है ਇਹ ਉਹੀ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ भाई साहब ये क्या लिया बनाया आपने? ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਤੂਫਾਨੀ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਜਵਾਨੀ ਆਂਟੀ ਤੂਫਾਨੀ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਗੜ ਗਈ ਪਈਆ ਹਾਏ ਵੇ ਹਾਏ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗਫਾਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੇ ਵੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਟ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਬਿਗੋ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾ ਉਧਰ ਖੇਡਣ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ 5 ਦਿਨ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 7 ਸ਼ਰਟਾਂ 7 ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ अच्छा ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ 7 ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 7 ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈਆਂ 450 ਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ खुश थी 24 आवर्स आप लोग काम करते हैं यानी कि 24 घंटे एक मिनट भी ऐसा नहीं होता कि आप लोग की जो लाइव है जो बंद हो ठीक है अभी भी मेरा ख्याल आप ये यानी कि 4 लोग मेरे साथ खड़े हैं 2 बंदे अभी भी इनके जो है वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो सिर्फ इसलिए इंटरव्यू में नहीं खड़े हुए वो सिर्फ इसलिए लाइफस्टाइल में खड़े नहीं हुए कि हमारा काम जो है वो बंद हो जाएगा ठीक है जोशी भाई पाकिस्तान ही नहीं
पूरे पाकिस्तान में, उसके बाद दुबई, यूएई, शारजाह, ये वो लटरम पटरम, यूएसए, हमारे, हर जगह पे सब्जी वाला को जाना जाता है। 10 मिलियन के करीब हैं फॉलोवर अपना बीगो पे, अच्छा, तो पूरी दुनिया में। ये नहीं कि पाकिस्तान में 200 कितने मुल्क हैं जो उसके अंदर वो चलती है। पाकिस्तान की टॉप, आपको ये भी बताता चलूँ, पाकिस्तानी रूम में अगर टॉप आईडी किसी की भी है वो इन्हीं की है। आई थिंक 67 लेवल, सॉरी 76 लेवल, 78 लेवल, माशाल्लाह। एक 78 लेवल की है और दूसरी भी 70 लेवल की होने वाली है या हो चुकी है, 70 प्लस है वो भी। अच्छा मलक साहब, मुझे ये बताएं, जोशी की सरपरस्ती में काम करते हुए कितना अरसा हो गया और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? एक साथ काम करते हुए हमें तो तकरीबन कुछ 16-17 साल हो गए हैं। अगर सोशल ऐप पे बनाएं तो 6 साल हो गए हैं तकरीबन हमें इन चीज़ों में। और तकरीबन जब से हम इन ऐप्स को चलाना शुरू किया है, तब से हम सिर्फ इकट्ठे हम ही हैं। हमारे सब दोस्त ख़त्म, किसी से हम ना मिलना, आपस में सिर्फ रहना। हमने 3-3 महीने तक हमने किसी से मिलना नहीं होता था इस मुकाम तक आने के लिए। बड़ी मेहनत की, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ एक रहना और जज्बा भी चाहिए होता है इस चीज़ के लिए कि हमने कुछ बनना है, तभी इंसान कुछ बनता है। मलिक आमिर साहब, गाड़ी कौन सी रखी हुई है? मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह करोला है मेरे पास। करोला है। कभी ख्वाब देखा था कि करोला होगी? नहीं, कभी नहीं, लेकिन सोचा था कि अल्लाह ताला से इंसान को ज़्यादा ही मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह देता है। हमने मांगा है और अल्लाह ने हमें दिया है। एक गुर्बत की ज़िंदगी थी, एक आज अरूज की ज़िंदगी है, कैसा फील करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कल उस वक्त भी डाउन टू अर्थ थे, आज भी वही हैं। जब वीडियो बनाते थे ना फेसबुक पे, तो जो बाहर के मुल्क के लोग होते ना, वो हमें दुआएं देते थे कि यार तुम इस दौर में चेहरों पे स्माइल लेके आते हो, खुशी लेके आते हो। तो फिर ये चीज़ से हमें बड़ा जज्बा आता था और मैं कहता था यार वाकई ये भी एक नेकी है आजकल के दौर में, अगर किसी को बंदा खुश करता है तो। इतनी शरारतें करते हैं आपस में। मैंने अभी आपने अपने गांव, अभी हम इनके गांव से इधर सीधा घर आए, तो गांव जब ये मंडी का हमें विज़िट करवा रहे थे, तो तब भी इनकी शरारतें थी। केले के ट्रक में एक दूसरे को कच्चे केले खिलाना, उसके बाद केले का स्टोर आपने विज़िट करवाया, उसके अलावा भैंसों के वहाँ पर गए। हाजी वो क्या कर रहे थे आप कट्टे को करके? ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਹਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਟੋਡਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਛੇੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ अच्छा जोशी भाई, सब्जी मंडी में आप आड़ती तो हैं ही हैं अब, ठीक है, कभी पांडी पुना भी गया? पांडी मतलब यानी कि वजन वगैरह भी उठाया? यार पांडी पुना की सारे काम करते रहे हैं वहाँ पे। जो फड़ पुना होता है, सौदा बैठ के देना बेचना, मुझे शौक होता था काम करने का। और हाजी मेरे साथ शुरू से काम करता था, मतलब हम सौदा ख़रीद के वहाँ पे बेचते थे। और एक दिन आ गया कि हाजी का अब्बू ना इसे कहता कि तुम इसके पास ना जाया कर, तो इसको वो समोसों वाली दुकान पे छोड़ के आ गया। अच्छा। तो हाजी ने 1-2 महीने वहाँ पे काम किया, शुक्र दोपहर गर्मी और उसके आगे, मतलब फिर मैं हाजी के पास गया। मैं कहा यार हाजी ये तेरा फ्यूचर नहीं है, तो ये काम छोड़ दे, मुझे नहीं अच्छा लगता तुम जो जिस तरह का काम कर रहे हो ना, मतलब काम वो करो जिसमें बंदे का मुस्तकबिल बने, जिसमें। तो फिर इसके अब्बू को बड़ी मुश्किल मैंने मनाया। मैंने कहा जी आप मेरे साथ इसको रहने दे, तो मैं इंशाल्लाह इसको मंडी का या ये वो दूसरा काम ऐसा सिखाऊंगा जिससे ये मतलब बिजनेस करना शुरू हो जाएगा, बिजनेसमैन बन जाए या अच्छा खासा इसका सिस्टम हो। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ रहा, तो फिर हम एक साथ ही काम करते थे आस्ता 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 आस्ता, तो आज यहाँ तक ये सिस्टम। जी मुझे ये बताएं कि जितने भी आपके साथ लड़के जुड़े हुए हैं, जितनी भी टीम जुड़ी हुई है, इनको सैलरी देते हैं या जो जितना मांग? यार हमारा खुला सिस्टम है, मतलब जो जिसकी जितना भी ज़रूरत होती है उसी हिसाब से हम चलते हैं, तो इसमें कोई तयशुदा चीज़ें नहीं हैं। जैसी फार्चूनर रखी हुई है माशाल्लाह, लेविश किस्म का घर है, उसके अलावा बैंक बैलेंस है और मंथली हैंडसम कमाते हो। साढ़े वाली तो आनी है, नहीं, मतलब मंथली हैंडसम कमाते हो और काफ़ी हैंडसम कमाते हो, ठीक है। तो अब जो देख रहे हैं, जो डिसहार्ड होके घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं काम शुरू करते हैं, पहली दफ़ा नुकसान हुआ बंद कर दो, नहीं करना आगों, ठीक है। जो लोग डिसाइड होकर बैठे हुए उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सारी चीज़ें जो होती है आपकी नीयत पे, अगर आपकी नीयत साफ़ है ना, अगर आपको नुकसान हो भी गया है तो एक ना एक दिन आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। अगर आप डिसाइड हो गए, गलत रास्ते पे चले जाते हो, या आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया है तो आप भी फ्रॉड करना शुरू कर देते हो, या कोई और इसी तरह का मामला है, नीयत आपकी साफ़ है ना, थोड़ी मुश्किल ज़रूर होता है, टाइम लगता है, लेकिन एक ना एक दिन आप कामयाब ज़रूर होते हो। अच्छा जोशी भाई, टिकटॉक भी यूज़ करते हैं, ये सारी एप्लीकेशंस के अलावा टीवी ड्रामों में कभी चांस नहीं मिला या किसी फिल्म वगैरह में? यार बड़ी कोशिश की, चांस नहीं मिला, फिर हमने अपनी शॉर्ट मूवी बना ली। अच्छा, अपनी शॉर्ट मूवी बना ली? आप देखना, बड़ी मज़े की बनी है। कोशिश फर्स्ट टाइम हमारा पहला काम है, तो हारर दी चारर मूवी का नाम है, शॉर्ट मूवी है। अच्छा। तो आप लोग ज़रूर देखना, अगर मज़ा ना आया
तो फिर चिप्स खा लेना केचप के साथ। आपकी कितनी क्वालिफिकेशन? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक। हाँ जी, आपकी कितनी? 5 पास हाँ। 5 पास। जोशी आपकी कितनी? आई एम ग्रेजुएट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। 2 पास। 2 पास। गफारा आप कितना पढ़े? मैं बाईपास। बाईपास। आप कितना पढ़े? अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 पढ़ा हूँ। 2 पढ़ा हूँ। यानी कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी भी बन सकती है अगर इसको आप पॉजिटिव वे से देखें। हाजी साहब 5 पढ़े हुए हैं, मलिक साहब ने मैट्रिक किया हुआ है 2 और 2 4। भाई मैं भी 5 ही हूँ। 5 ज़्यादा नहीं पढ़े। यानी कि अगर मेहनत करते रहें तो कुछ ना कुछ हासिल हो जाता है। ये सारा कुछ जो हासिल इन्होंने किया है, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, बंगला, इसके अलावा इज़्ज़त, ये सारा कुछ मेरा ख्याल मेहनत की वजह से ही हासिल हुआ है। अपने मेज़बान जैन बाबू को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान। जाओ।